जब आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 पढ़ते, निकालना नहीं है, When you read Genesis chapter 1, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का आत्मा था वो गहरे जल के ऊपर मंडराता था, and in Bible it is written where the Spirit of God used to roam around in the deep ocean. और जो पृथ्वी थी वो बेडोल और सुनसान थी. And the earth was with no shape. अब इधर देखिए मेरे तरफ ध्यान से, मैं Now चाहता try हूं to आप look इसे at me. समझे. I want- सुब्बू इधर देखो, I want everyone to listen here. बहुत ध्यान से सुनना. Try to listen carefully. जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी So the earth was without any shape, और गहरा जल था and there was a deep ocean, और वहां पर पवित्र आत्मा उस पर मंडराता था. and there was Holy Spirit who तो used to roam सिचुएशन around, जो थी वो पूरी बेडोल थी, कोई शेप नहीं था, and there was no shape of the earth. और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है. And on top of that is the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा होने के बावजूद भी वहां पर चीजें बेडोल होने से नहीं रुकी. Even that Spirit of God was there on top, but still the earth was not in shape. अब बहुत ध्यान से सुनना. Now try to listen carefully. प्रभु है, God is there, सीजन वहां पर बेडोल है, and the earth is without मगर any फिर shape. बाइबल कहती है तीसरी आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा. And in the third verse, God said, and then God said, इसका मतलब था सिचुएशन बेडोल है, and it means where the earth is without any shape, वहां पर प्रभु का आत्मा है, and where there is Spirit of God, मगर आत्मा होने के बावजूद भी वहां पर शब्द का कहना जरूरी था. but then being Spirit of God is still there, the word is necessary to say. सो इम्पोर्टेंट क्या है So what is important here? कि जहां पर सिचुएशन गड़बड़ है, Where the situation is wrong, जहां पर सब कुछ गड़बड़ है, where everything is in trouble, आपके अंदर प्रभु का आत्मा तो है, and you have that Spirit of God in you, मगर आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. but it is necessary you to speak out. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? तो जब मैं किसी बीमार को देखता हूँ, So when I see any sick person, बहुत ध्यान से सुनना. try to listen carefully. मैंने अपने 12 साल की सेवकाई में कई लोगों को चंगाई पाते हुए देखा है. I have seen many people healed in my 12 years ministry. सो कई लोगों को लगता होगा कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है जिसके कारण ऐसा हो रहा So है. some people will think that I have something in my body. जरूर पवित्र आत्मा है, Definitely there is Holy Spirit in वो me, सेम पवित्र आत्मा जो आप सबके अंदर है. and the same Holy Spirit which you have. मगर एक बात जो मैं अलग कर रहा हूँ, जो आप नहीं कर रहे हैं, But one thing which I am doing different than you, मैं उस सिचुएशन के ऊपर पवित्र आत्मा के साथ शब्दों को कह रहा हूँ. in that particular situation, I am telling words with Holy Spirit. कितने लोगों को समझ में आ रहा How है? many will understand this? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात चंगाई के लिए आपको एक सीखना है. The first and important thing, for the healing, you need to learn one thing. आपको पहली बात उसके जीवन पर वो शब्दों को कहना है. The first thing is you need to speak out words in that situation. अब में से कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many will understand what I'm saying? अगर आप किसी को देखो If you see someone, और आपको लग रहा है कि यार ये वीक है, and if you see that he or she is okay, और आप उसके जीवन पर कह रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मुझे तुम बीमार दिख रहे हो, मगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, इस वचन को मैं तुम्हारे जीवन पर रिलीज and करता while हूं. seeing them, you say a word to them, by Jesus God, those stripes, you're going to get that healing in the name of Jesus. ऐसे कई लोग जिनके जीवन पर सब कुछ गड़बड़ था, मैं जस्ट जाकर वचन बोल कर आया. There were many people where their life was in trouble, and I have spoken out the word of God, and everything was fine. मैंने किसी को बोला 6 महीने में ऐसा होने वाला है, And I've told someone that within 6 months something is मैंने going to किसी को happen. बोला 3 महीने ऐसा I've होने told वाला है. someone that within 3 months something is going to happen. तो क्या अलग किया पता है मैंने? So what is the different thing which I did? मैंने उसके सिचुएशन पर वर्ड कहा. I have told word in those situations. और पता है वो वर्ड सामान्य नहीं होना चाहिए, And that word should not be a normal word. वो वर्ड होना चाहिए प्रभु का वचन. And that word should be word of God. तो एक वचन होगा जो 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 लिखा हुआ वर्ड है, Where one word will be written in Bible. जो रिटन वर्ड है, जो आपको बाइबल में लिखा हुआ है, आप उसे लेकर लोगों को कहते हैं. A word which is written in a Bible and you speak out that word in people's lives. दूसरा एक रेमा वर्ड होता है जो प्रभु डायरेक्टली आपसे बात कर कर लोगों के विषय कहता And है. second is a rhema word where God puts it in your mind to tell people. इसका मतलब है It means अगर किसी की सिचुएशन गड़बड़ है, if someone's situation is having a problem, आप उसके जीवन पर अपना शब्द कह रहे हैं, you are telling your words in his life. आप उसके जीवन पर वो शब्दों को रिलीज कर रहे हैं. You are releasing word in his life. आपको पता है ये कैसे काम करता You है? know how does it work? आपको बाइबल नहीं खोलना है. जॉन You know- चैप्टर 4 वर्स 46. John chapter 4 verse 46. इसमें जब आप पढ़ेंगे, When you read this, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना हुई है. there is a very interesting incident over here. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने और देखें. I want everyone to listen it carefully. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको रिपीट नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना. यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था.
वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। राजा का एक कर्मचारी है, उसका पुत्र है, वो बीमार था, ठीक है, कफरनहूम में बीमार था। नेक्स्ट, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा। सुनिएगा, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। You need to understand here one thing. ये जो बीमार व्यक्ति है वो कफरनहूम में है, The sick person who is in Capernaum, और यीशु जो है वो गलील में आ गया, and Jesus was in Galilee. और बाइबल में लिखा हुआ है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। नेक्स्ट 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 यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। नेक्स्ट 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 राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, Now try to listen carefully. जो बेटा है वो कफरनहूम में है A son who is in Capernaum, और यीशु मसीह गलील में है। and Jesus is in Galilee, ये राजा के कर्मचारी का बेटा बीमार है, and those officers of royal people, और बाइबल में लिखा हुआ है and in Bible it is written, कि ये इसके यीशु मसीह के पास आया, and it is written there where he came near to Jesus और Christ, यीशु मसीह के पास आकर कहता है and he came near to Jesus and कि said, यीशु मसीह, मेरा बेटा बीमार है, and Jesus, my son is sick, आप आओ और उसे ठीक करो, आप आओ और उसे ठीक करो। and you come and heal him. यीशु मसीह दूसरे जगह पर है, And Jesus was in a different place, और यीशु मसीह कहते कि जा, तेरा बेटा ठीक हो गया। and Jesus said, go, your son is healed. आपको पता है, आप और मैं इस जगह होते बोलते नहीं नहीं, मैं तो आप आओगे तभी बिलीव करूंगा, And if you and me were there in that place, you would say, no, when you'll come only, I'll heal him. मगर बाइबल में लिखा हुआ है ये व्यक्ति जो है ये विश्वास करके चला गया। And in Bible it is written that particular person, he believed and he left the place. जब ये रास्ते में जा रहा था, When he was on his way to home, लोग उसके घर से आए और कहते हैं कि तेरा बेटा ठीक हो गया। and his people from his home came to him and said that your son is healed. पता है, ये बंदा उनसे पूछता है कौन से घड़ी में, कौन से समय में ठीक हुआ। And he asked those people what time he was healed. जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वे कहते हैं इस समय पर ठीक हुआ। When you will read the verse completely, you will understand that particular time. पता है वो व्यक्ति इस बात को रिकॉग्नाइज कर कहता है, ये वही समय था जब यीशु मसीह ने कहा था। You know, that particular person realized it's the same time when Jesus told. अब इस बात को ध्यान से सुने, Now try to listen carefully. यीशु मसीह अलग शहर में थे, Jesus was in a different place, यीशु मसीह ने कहा, and he said, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा, in Bible it's written that Jesus तेरा said बेटा ठीक हो गया, that your son is healed. और उसी घड़ी, At the same moment, उसी मोमेंट पर at the same time, वो लड़का ठीक हो गया। and that son was healed. मगर कैसे? But how? प्रभु ने हाथ रखा। You know, did God, Jesus place hand? देखिए, हीलिंग के भी डायमेंशन है, And there are many dimensions of healing. और ये डायमेंशन क्या है पता है? And you know what is this dimension? जहां पर यीशु ने कहा Where Jesus said, और वो ठीक हो गया। and he was healed. Now listen church, अब ध्यान से सुनिए. पता है जब आप कहते हैं You know, when you say कुछ होता है, and something happens, जब आप कहते हैं, when you say, पता है आपको क्या करना है? you know what you have to do? आपको आपकी उस बीमारी पर प्रभु के वचनों को लाउडली, जोर से कहना है। You know, you need to speak loudly the word of God in that situation, in that sickness. कितना लोग समझ रहे हैं? How many will understand this? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सब बोलो कहना है। Everybody say, we need to say.